السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ ریاستی وزیر KTR نے روپے کی قدر میں کمی کے سبب مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ KCR دلی تک پہنچ جائیں۔ TRS کو BJP کی متبادل طاقت کے طور پر بڑھنا چاہیے۔ KCR ہی عوام کو انصاف دے سکتے ہیں۔ سر پر اسکارف پہننے سے انکار پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی ٹی وی CNN کی صحافی سے انٹرویو منسوخ کر دیا۔ تقریر کے بعد امریکی صدر کھوسے گئے اور اسٹیج پر چڑھنے کے بعد اترنے کا راستہ بھول گئے اور لوگوں سے پوچھتے نظر آئے۔ ریاستی وزیر داخلہ ہریش راؤ نے آج کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اعضاء کی پیوند کاری کا سینٹر تیار ہو جائے گا اور آئندہ 3 ماہ میں حیدرآباد میں بھی ایک فرٹیلیٹی سینٹر قائم کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں ICU شعبے میں سرجری اور پیڈیاٹرک کا معائنہ کرنے کے بعد ہریش راؤ نے کہا کہ اس دواخانے میں تقریباً 30 دن کے اندر ہائی الٹرا ساؤنڈ مشین فراہم کی جائے گی۔ گاندھی ہاسپٹل کی خدمات بالخصوص کووڈ کے دوران انجام دی گئی سہولتوں کی ستائش کرتے ہوئے وزیر نے الزام عائد کیا کہ ایمس BB نگر میں بنیادی سہولتوں کے بغیر کام کاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مرکزی وزراء پر زور دیا کہ وہ ریاست کا دورہ کرے اور صرف بیان بازی کے بجائے ریاست کے لیے طبی سہولتوں کی منظوری کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے ذریعے اتوار کو 11 بجے دن آل انڈیا ریڈیو پر عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس ریڈیو پروگرام کی یہ 93ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس کے علاوہ ایئر نیوز ویب سائٹس اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام ایئر نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی راست پیش کیا جائے گا۔ آل انڈیا ریڈیو ہندی براڈ کاسٹ کے فوری بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کا ترجمہ پیش کرے گا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا پروگرام کے نفاذ کے 4 برس کی تکمیل کے موقع پر مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منکش مانڈویہ اتوار کو آروگیہ منتھن 2022 کا افتتاح کریں گے۔ اس اسکیم سے متاثرہ خاندانوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے کے ذریعے طبی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ملک بھر میں زائد 10 کروڑ غریب خاندانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی منتخبہ تقاریر کا ایک کلیکشن آج نئی دہلی کے آکاش وانی بھون میں جاری کیا جائے گا۔ اس کتاب کا عنوان سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس پرائم منسٹر نریندر مودی اسپیکس دیا گیا ہے، جس کے ذریعے نئے بھارت کے لیے وزیر اعظم نے جو خواب دیکھا ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی رسم اجرا کی تقریب میں کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان، سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ اس کتاب سے مودی حکومت کی فیصلہ سازی، منصوبے اور عزائم کا اظہار ہوتا ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے مختلف شعبوں کے تعلق سے وزیر اعظم کے نظریات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عارف محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کے لیے تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپورو چندرا، CEO پرسار بھارتی مینک اگروال، DG آل انڈیا ریڈیو نیوز ڈاکٹر وسودھا گپتا، DG پبلیکیشن ڈویژن مکھرجی اور وزارت کے دیگر سینئر عہدیدار موجود رہیں گے۔ یہ کتاب ملک بھر میں ہندی اور انگریزی زبان میں فروخت کے لیے دستیاب رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیا ہندوستان آج قابل تجدید مسائل کے معاملے میں بحیثیت لیڈر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سولار الائنس سے لائف موومنٹ تک ملک قیادت کر رہا ہے۔ مودی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام ریاستوں کے ماحولیاتی وزراء کی قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کے تلنگانہ یونٹ نے آج الزام عائد کیا ہے کہ برقی سربراہی کے لیے خانگی ادارے نے ڈسکام کو اجازت دیے جانے کا اعلان مرکز کے اس منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت سینٹرل الیکٹرسٹی بل اور تینوں زرعی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے خانگی کارپوریشنوں سے برقی خرید کر ریاستی حکومت کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکز نے ریاستی حکومتوں کو خط روانہ کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ اناج کی خریدی نہ کی جائے۔
रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत आइंदा 5 हफ्तों के दौरान प्राइमरी हेल्थ केयर मराकज़ और सरकारी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स में 2140 डॉक्टर्स के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लेगी। निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज एक तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 1000 डॉक्टर्स के तकर्रुरात का मरहला आइंदा 10 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा और 1140 मज़ीद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों के लिए भी जल्द ही एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्सेस मुकम्मल करने वाली जुमला 140 नर्सेस को सरकारी मेटरनिटी दवाखानों में मुकर्रर किया जाएगा। ఆరోగ్యశ్రీ కేసెస్ బాగా చేస్తున్నారు, నీ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ కూడా ఈ మధ్య ఇంప్రూవ్ చేసినారు. మీకు అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఆర్ ఎట్ లిబర్టీ, వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా మీరు ఏదో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోండి, డిఎంఈ పర్మిషన్ తీసుకోండి అని కూడా చెప్పట్లేదు. జిల్లాలోనే మీ హాస్పిటల్ ఇంట్రెస్ట్లో, హాస్పిటల్లో మీ రివ్యూలో ఏది అవసరం ఉంటే దాన్ని మీరు ప్రొక్యూర్ చేయండి, అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మంచి వైద్యం ఇవ్వండి అని చెప్పినారు. అయితే ఎందుకు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అంటే బికాస్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ ఏవైనా కొంత మీరు ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకేదైనా స్ట్రెంథెన్ చేసే విషయంలో ఉంటే మీరు మీ సూపరింటెండెంట్స్కి చెప్పి మీరే ఇమీడియట్గా దాన్ని అటెండ్ చేయడానికి మీకు ప్రాబిలిటీ ఉంది. అదేవిధంగా మీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ కొనుక్కోమని చెప్పాను. థియేటర్లో వాడే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటే, షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫాస్ట్గా మీరు దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేయడంలో ఎక్కడన్నా చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఎ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అందువల్ల మీరు సఫిషియంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొని పెట్టుకోండి, మీ దగ్గరే కావాలి, చిన్న కాస్ట్, పెద్ద డబ్బు కూడా కాదు. मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मैदक और अक्कन्नापेट रेलवे स्टेशन के दरमियान बिछाई गई रेलवे लाइन को आज कौम के नाम किया। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मैदक और अक्कन्नापेट रेलवे स्टेशन के दरमियान बिछाई गई नई रेलवे लाइन को आज कौम के नाम किया। 17 किलोमीटर तवील इस रेलवे लाइन को 205 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। किशन रेड्डी ने आज शाम मैदक से काचीगुड़ा स्टेशन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को मैदक रेलवे स्टेशन पर झंडी भी बताई। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर पैसेंजर टिकट रिजर्वेशन और बुकिंग ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि नई रेलवे लाइन की तनसीब से अक्कन्नापेट के अवाम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 9500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। किशन रेड्डी के मुताबिक ज़िले मैदक को सिकंदराबाद मुंबई रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और ज़राई अशिया की ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुंतकिली के लिए भी इजाफ़ा किया जाएगा। इस मौके पर मैदक के रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, मकामी अरकान असम्बली और SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन भी मौजूद थे। ప్రజలకు ఒక పండుగ, అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ రావాలని అనేక మంది పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇక్కడ నుంచి ఎంపీగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా అనేక రకాలుగా ఈ రైల్వే లైన్ కోసం మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు అనేక రకాల పోరాటాలు చేశారు. మరి ఈరోజు ఇక్కడ రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి అధికారుల కృషి కానీ, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల కృషి కానీ, మెదక్ పట్టణానికి సంబంధించి రైల్వే సాధన సమితికి సంబంధించినటువంటి వారి కృషి కానీ, లేక ఇక్కడి ప్రజల యొక్క అనేక రకాల నిరంతరమైనటువంటి పోరాటం కానీ ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు రైల్వే స్టేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి రైలు అద్భుతంగా అలంకరించుకొని మరి కొద్దిసేపట్లో హైదరాబాద్ తరలి వెళ్ళడానికి ఆ యొక్క ట్రైన్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. ఈరోజు చాలా సంతోషం. అక్కన్నపేట నుంచి మెదకు కొత్త రైల్వే లైన్ మనం ప్రారంభించుకోవడం, ఇక్కడి వరకు ట్రైన్ను మనం తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఈరోజు ఈ జిల్లా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ యొక్క కొత్త రైల్వే లైన్, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ట్రైన్ అంకితం చేయడము చాలా సంతోషకరమని మనం చేస్తా ఉన్నాము. ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ 200 మరి టోటల్ గా
ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ విషయంలో మనం అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ కోసము అనేక మంది ఇక్కడ ఎంపీలుగా ఉన్నప్పుడు టైగర్ నరేంద్ర గారు కానీ, విజయశాంతి గారు కానీ, ఈరోజు విజయశాంతి గారు ఉన్నప్పుడు దీనికి ఫౌండేషన్ కూడా వేసిన విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈరోజు 17 కిలోమీటర్ల सबकदोश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एन.वी. रमन्ना की आज हैदराबाद आमद पर इनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। ओहदे से रिटायर होने के बाद रमन्ना पहली बार शहर आए हैं। हाईकोर्ट जजेस बशमूल चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, अरकान ख़ानदान और बही खाहों ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एन.वी. रमन्ना का खैर मकदम किया। करीमनगर मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को साल 2021-22 माली साल के दौरान 418.18 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि 2020-21 के दौरान ये मुनाफा 364.45 करोड़ रुपए था। करीमनगर डेयरी के चेयरमैन राजेश्वर राव ने आज करीमनगर में मुनाकिदा 11वीं जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। बारकस के मशहूर व मारूफ इरकान की दवा देने वाले हाफिज महमूद कुरैशी पर खुसूसी रिपोर्ट। बारकस हैदराबाद दक्कन का कदीम मोहल्ला है और तारीख़ दक्कन के लोग मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत है जो मेहमान नवाजी के अलावा मोहल्ले के मासूम बच्चों की दिलजोई और ज़ियाफ़त में खुशी महसूस करती है। इनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जो 3 नस्लों से दुनिया भर में यरखान की मुफ्त दवा देने के लिए मशहूर हैं। इस शख्सियत का नाम हाफिज़ महमूद कुरैशी है, जो तकरीबन 70 साल से बंदगान खुदा को यरखान की दवा मुफ्त देते हैं और हफ्ते में 3 दिन मासूम बच्चों को लवाजिमे के साथ मुफ्त खाने का एहतमाम भी करते हैं। आइए देखते हैं चंद झलकियाँ नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में खैर मक़दम करते हैं। आज इस वक्त हम बारकस के अंदर जॉन्डिस मेडिसिन की जो दवा देते हैं जनाब हाफिज महमूद साहब के मकान पर आए हैं। महमूद साहब के पास आने का मकसद हमारा एक ही है कि महमूद साहब को हम काफ़ी दिनों से इनको देखते हैं और इनके साथ में हम आज यहाँ पर आए हैं। इनकी जो खिदमत है तो मासूम यतीम बच्चे नसीब बच्चे जो रहते हैं उनके लिए इन्होंने इस तरीके के मासूम बच्चों के साथ मैं साथी से कहूँगा कि बताइए कि किस तरीके के छोटे छोटे मासूम बच्चे इनको बुलाते हैं अपने साथ बैठा के हर दिन इन्होंने बच्चों के लिए अपन जो खाते तो खाना है जैसा मंदी है, बिरयानी है, हर वो चीज़ है, चॉकलेट्स है और ये बच्चों को लेके इन्होंने गाड़ी में बैठ के इनके साथ घूमते हुए यहाँ पर पूरे एरिया का इन्होंने दौरा करते हुए बच्चों के साथ में फिरते हैं। पूरा वक्त इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अंदाज के अंदर इन्होंने का काम करते हैं। इसको देखते हुए आज इनके पास आइए। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते ही इनके पास पूरे बच्चे हमेशा के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे पे जो खुशी लाने का काम करते हैं हाफिज महमूद साहब के पास। नाज़रीन हम बिला वक्त बजाए आपसे रूबरू करने जा रहे हैं बारकस की मशहूर मारूफ शख्सियत जॉन्डिस मेडिसिन के हाफिज महमूद साहब। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको आपके साथ जुड़ के सारे मनाजिर हमारे नाज़रीन तक बताने के लिए आज ये जो काम करते हैं
आपको कैसा ख्याल आया कि इस दर्शन के ऊपर हमको ये करना है? क्या बताऊँ साहब, एक वक्त था जो मुझे भूख का एहसास हुआ साहब, बस वो दिन मैं भुला नहीं सकता। भूख क्या होती है, उसमें आदमी कितना देना वो हो जाता। बस वो दिन को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे बड़े भी ये काम अंजाम देते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अरसे दराज से ये भूखों को खाना खिलाने का काम जैसा भी मौका मिला, जैसा भी सहूलत पहुँची बराबर जो है आता हूँ, लाते रहूँगा। हाल ही में लॉकडाउन में भी आपको काफ़ी आपके ऊपर हमारी नज़र दी, उसके बाद फ्लड आया। आपकी जो खिदमत थे, जो घरों के ऊपर आप जाके करते थे, वो कहाँ तक अभी काम कर रहा है? साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है काम का जारी है साहब इंशाअल्लाह ताला, और वो काम को भी हम जो है और जो है ज़्यादा बढ़ाइए और इसको भी वसी करिए इंशाअल्लाह ताला। जो है हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल भी पहुँच के वहाँ पर भी जो है मरीजों की जो है नाम से जो हो सकती है मदद करेंगे। जैसा कि आप सुने, अभी हमने महमूद साहब से काफ़ी तफसील बातचीत की। बताने का मकसद भी यही है कि ऐसे अहले खैर हज़रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेलंगाना न्यूज़ टुडे दुआ करती है कि ऐसे साहिबीन को और हैदराबाद के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा कायम रहे। मैं मेरे साथी वाजिद के साथ तेलंगाना न्यूज़ टुडे बारकास हैदराबाद। नाज़रीन, जैसा आप देखें, हम बारकास आए थे जॉन्डिस मेडिसिन के जनाब हाफिज़ महमूद साहब के पास। इन्होंने जिस तरीके से हमको इनका जो रिवाज है बारकास का, यमन का जो स्टाइल होता है, उसकी हमें इन्होंने तैबन बनी और सर पे मुशज्जरे से हमको जो है एक एजाज़ से नवाजा। हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो मोहब्बतों से इन्होंने हमको जिस तरीके का हमारा इस्तकबाल किया। तेलंगाना न्यूज़ टुडे की टीम की तरफ से हम बारकास के जॉन्डिस मेडिसिन के जनाब महमूद साहब का और मोहसिन कुरैशी साहब का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनका जो काम है, हम तो आपको पूरे वीडियोस में इनकी जो एक्टिविटीज़ है सारी चीज़ हम आपको बताएं। ये वो शख्स है जो अपने घर के अंदर एक से कीमती सामान होता है, एक से कीमती महल के तरह गालिब बिछी हुई है, उसके बावजूद भी यतीम यसीर बच्चों को अपने घर बुला के जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करते ये काबिल तारीफ़ है। इनके सारे चीज़ों को देखते हुए तेलंगाना न्यूज़ टुडे से मैं एक ज़िम्मेदारी हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। आज जुम्मे का दिन है। इनके साथ करीब 1-2 घंटे का मैंने वक्त गुजारा। उसके बाद इन्होंने मुझे इस तैबन और इस मुशज्जरा और मेरे साथ आए हुए मेरे पूरे साथियों को इस चीज़ से इन्होंने नवाजा। फिर एक बार हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ व पंचायत राज के मिनिस्टर केटीआर ने मरकज़ी हुकूमत पर तंज किया। उन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपये की शरह तबादले पर तवज्जो न दिए जाने पर मरकज़ी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। जब रुपये की कदर अक़ल तरीन सतह पर गिर रही है तो मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वो राशन की दुकानों में वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर ढूंढने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रुपये की कदर में रिकॉर्ड सतह पर गिर गई है और मरकज़ी हुकूमत कह रही है कि तमाम माशी रिकावटों, बेरोज़गारी और महंगाई का ज़िम्मेदार है खुदा है। अब सवाल ये है कि क्या खुदा ने इन्हें हुकूमत नहीं दी ताकि वो अवामी फलाह व बहबूद के काम गरीबों को उनकी गुर्बत से निजात दिलाएँ, लेकिन अब गुर्बत व इफलास में बेइंतहा इजाफ़ा हो चुका है। वज़ीर केटीआर ने ट्विटर पर तंज करते हुए कहा कि अब विश्वागुरु की तारीफ़ पर वजाहत करे। रियासती तेलुगु अखबार के मुताबिक मुल्क का कोई भी तबका मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों पर मुतमईन नहीं है। हर कोई चाहता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर कौमी सियासत में दाखिल हो जाएं। इससे गरीब और निचले तबकात को इंसाफ मिलेगा। अवाम वाज़े तौर पर यह समझती है कि केसीआर के पास ही बीजेपी के मुतबादिल ताकत के तौर पर बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। मौजूदा हालात में मुल्क को केसीआर जैसे लीडर की अशद ज़रूरत है जो कि तमाम बरादरियों की अव्वलीन तरजीह होगी और मकसद के लिए एक कौमी पार्टी तश्कील देने की शदीद ज़रूरत है, वरना मुल्क का शिराजा बिखर सकता है। तेली देवरापल्ली सीताराम शास्त्री तेलंगाना ब्राह्मण एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि केसीआर के कौमी सियासत में आने से मुल्क भर के तमाम पुजारियों के ख़ानदान बेहतर हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सबब ज़ात पात के पेशों की पहचान मिली है। तालाबों के लिए मछली के बच्चों को मुफ्त सरबराह करें और रोज़गार के मौके में इजाफ़ा करें। केसीआर ने मछली को मंडी में फ़रोख्त करने की सहूलत फ़राहम की है। इसके लिए मराकज़ बनाए हैं। हमें अपने अपने कस्बे में आमदनी हो रही है। अगर केसीआर कौमी सियासत में दाखिल होते हो तो सारे हिंदुस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। इन ख्यालात का इजहार पोडूर के पुटनाला श्रीकांत मजीराज सिंघम के रहनुमा ने किया है। बहरहाल तमामी तबकात का मुतालबा है कि चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में दाखिल होकर मुल्क व कौम की बीजेपी के मकरो फरेब से आज़ादी दिलाएँ। मेट्रो लाइन के सुतूनों पर पोस्टर चिस्पा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1000 रुपये जुर्माना, 6 माह कैद। हैदराबाद में भी मरकज़ी मेट्रो ज़वाबित को लागू किया जा रहा है। मेट्रो लाइन के सुतूनों पर पोस्टर चिस्पा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1000 रुपये जुर्माना, 6 माह की कैद होगी। इस बात से मेट्रो के एमडी NVS रेड्डी ने वाकिफ़ करवाया और कहा कि मेट्रो लाइन नामसाद हालात कोविड में भी खिदमात फ्राहम की हैं। रियासती वज़ीर दाखिला ने महकमा पुलिस के कराटे में इनामात हासिल करने वालों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराटे के सबब शरपसंदों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है और इन पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि कराटे में महारत हासिल करना जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फ़ायदेमंद है। हाल ही में महकमा जेल खाना जात ने अहमदाबाद में 6ठे कौमी कराटे मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया। जेल के 68 मुलाजमीन ने मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लिया। 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 4 ट्रॉफियां हासिल की। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई थी। इसमें उन्होंने इजहार ख्याल किया और महकमा जेल खाना जात के मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और एजाज़ से नवाजा। बागी लीडर शिंदे को अदालत से झटका। उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा मनाने की इजाज़त दे दी। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के ग्रुप को एक झटका दिया है। उद्धव ठाकरे की क़ियादत वाली शिवसेना को मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में दशहरे की तकरीबात मुनाकिद करने की इजाज़त दे दी गई। मालूम हुआ है कि बीजेपी की साजिश की वजह से शिवसेना 2 धड़ों में तकसीम हो गई। इस पस मंज़र में उद्धव ठाकरे और शिंदे के धड़ों ने शिवाजी पार्क में दशहरा की तकरीबात मुनाकिद करने के लिए मुकाबला आराई की। ताहम ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अमन व अमान के मसले के नाम पर इन दोनों ग्रुपों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। नतीजे में उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना ने मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के हक़ में फ़ैसला दे दिया। नहीं कुणाच्या बापाची उद्धव साहेब आगे बढ़ो।
आणि नाशिकला सुद्धा आजपर्यंत एकच विनंती. त्रिपुरा असम्बली से बीजेपी के मजीद एक रुकन असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया। क़बले एक वज़ीर ने भी इस्तीफ़ा दिया था। बीजेपी के लिए सदमा। रियासत त्रिपुरा में हुक्मरान बीजेपी को मजीद एक सदमा। गुज़िश्ता एक साल में 2 अरकान असम्बली और एक रियासती वज़ीर ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया और अब हाल ही में मजीद एक रुकन असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सीनियर लीडर बढ़िया मोहन त्रिपुरा 67 साल ने अपने रुकन असम्बली के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। बुरबा मोहन 2018 में करबुक असम्बली नशिस्त से रुकन असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफ़ा देने की वजूहात बताने से इनकार कर दिया है और अब वो टिप्रा इंडिगनस प्रोग्रेसिव अलायंस में शामिल होंगे। बुरबा मोहन के हमरा मजीद एक सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर गौरव शंकर एंग भी बीजेपी छोड़कर टिप्रा में शामिल होने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे बिहार के मौके पर रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या वो खौफजदा करना चाहते हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के अहम लीडर तेजस्वी यादव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे बिहार पर तेजस्वी ने तल्ख़ जवाब देते हुए पूछा कि क्या वो यहाँ किसी को खौफजदा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, इसलिए सब कुछ इसी पस मंज़र में देखा जाना है, लेकिन वो अमित शाह को मरकज़ी वज़ीर दाखिला या सियासी लीडर के तौर पर नहीं देखते। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें किस तरह देखते हैं। वीडियो डाले थे कि प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का, उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया, हम तो पहले ही कह देना आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का। पार्टी के कौमी सदर के इंतखाब के लिए दिग्विजय सिंह का नाम लिया जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि वे इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात 17 अक्टूबर को होंगे। इस पार्टी के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि गांधी ख़ानदान का कोई भी फ़र्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इस पस मंज़र में कई सीनियर कायदीन के नाम ज़ेर बहस आ रहे हैं क्योंकि वह सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने जा रहे हैं। इस कतार में पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि वो पार्टी सदर के ओहदे की दौड़ में नहीं हैं, बल्कि वो पार्टी के आला लीडरों की जानिब से दी गई हिदायत और उसूलों पर अमल करेंगे। दिग्विजय सिंह की वजाहत के बाद अब सदर के ओहदे की दौड़ में सिर्फ 2 ही नाम नज़र आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान शशि थरूर हैं, जबकि दूसरे राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर के ओहदे का इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा और 19 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की टीम ने CNN की चीफ इंटरनेशनल एंकर क्रिस्टियान को इंटरव्यू देने से चंद मिनट पहले स्कार्फ पहनने की शर्त रखी। क्रिस्टियान ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। नतीजे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इंटरव्यू ही मनसूख कर दिया। दरअसल ये इंटरव्यू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में ईरानी सदर के साथ ये इंटरव्यू बहुत पहले से तय था। क्रिस्टियान का कहना था कि वो 1995 से अब तक हर ईरानी सदर का इंटरव्यू कर चुकी हैं और ईरान से बाहर कहीं भी उनसे कभी किसी ईरानी सदर ने स्कार्फ पहनने की शर्त नहीं रखी। अगर किसी ने इटली में रिहाइश का ख्वाब देखा है तो यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
बल्कि वहाँ मुंतकिल होने पर लाखों रुपये भी हासिल होंगे। इटली के जजीरे सर्डिया की जानिब से वहाँ आकर बसने वाले अफराद को 15,000 यूरो यानी 15 लाख हिंदुस्तानी रुपये के मसावी फ़ीस देने की मनसूबाबंदी कर ली है। वैसे तो ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इतने खूबसूरत मकाम पर आके बसने वाले अफराद को रकम दी जाए, मगर इस मंसूबे का मकसद आबादी की कमी के मसले पर काबू पाना है। दरअसल यूरोप व अमरीका बल्कि तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम ममालिक ने करीबन 70 बरसों से ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मुहिम चलाई थी, जिसका नतीजा है कि वहाँ आबादी बहुत हद तक कम हो गई। पहले जिन घरों में 6 से 8 बच्चे होते थे जो कि बड़े होकर वर्क फोर्स होते थे, लेकिन ख़ानदानी मनसूबाबंदी के सबब ये घटकर फ़ी जोड़ा सिर्फ 1 या 2 बच्चों पर इक्तफ़ा करने लगे, जिसके सबब आबादी में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई। अब चीन का हाल तो ये है कि अब वहाँ फ़ौज में भर्ती के लिए नौजवानों का कहत पैदा हो चुका है, और अगर किसी की जंग में झोंक दिया जाए तो ख़ानदान का अकलौता चश्म व चिराग होगा, और वो जंग में मारा जाता है तो फिर इसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। इस खौफ से चीन ने हिंदुस्तान से कोई बड़ी जंग नहीं की, बल्कि सिर्फ धमकियां देता रहा। यही कुछ हाल यूरोप का है, और रूस भी इसी राह से गुज़र रहा है। नतीजे में रूस के सदर ने वहाँ की ख़वातीन से कहा कि वो नसबंदी ना करवाएं, और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे हुकूमत इन्हें इतने ही इनामात से नवाजेगी, बल्कि इन बच्चों के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चीन ने कहा कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें। अब इटली से भी खबर आ रही है कि वो आबादी में इजाफा करने के लिए दुनिया भर के लोगों को पेशकश कर रहे हैं कि इनके बेआबाद जजीरों में आबाद हो जाएं। उन्हें हुकूमत माकूल रकम देगी ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। उन्यासी बरस के जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल फंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अमरीकी सदर कॉन्फ्रेंस के खिताब के लिए स्टेज पर पहुंच गए, लेकिन उतरने का रास्ता ही भूल गए। पहले आगे बढ़े, अचानक रुक गए, पीछे मुड़े और बज़ाहिर लोगों से पूछते नज़र आए कि स्टेज से कहाँ से उतरना है। उम्र रसीदा अमरीकी सदर कई बार लड़खड़ा कर भी चुके हैं, और हरीफ डोनाल्ड ट्रंप इन्हें स्लीपी जो बाइडन कहते हुए तंज करते हैं।